So this is reading number 19, passage number 2 from my volume 1, IELTS academic readings from the IELTS academic readings for exam practice. These are actual past exam readings of the academic module. And the general training module last passage is very similar to this. That is why this class is combined for the academic and the general students. So what do we do when we look at the reading, when we get the reading in hand? We read the title and then we go straight to see what sort of questions are there. Okay. Now let's see. Questions are, the first set of questions is MCQs. Okay. 5 questions. Then there are 5 questions summary completion and 3 questions global choice. Okay. So let's see. First, we'll go to the first question. Go to the keyword and then find the answer. The Stradbroke became 2 islands. Stradbroke जगह का नाम है, ये 2 island बन गया. A, by an intended destruction of the ship of the Cambus Vallis. कोई एक जो जानबूझ के डिस्ट्रक्शन करी गई शिप की. दूसरा, by an explosion of dynamite on a ship and following nature erosion. तो किसी शिप में डायनामाइट की एक्सप्लोजन हुई और उसके बाद नेचर इरोजन हुआ and by the movement of sandhills on Stradbroke Island, sandhills के movement के साथ. And last is by the volcanic eruption on island, by the volcanic eruption जो island पे हुई उसका. Now we'll read the passage. Okay. So ecotourism is often regarded as a form of nature. आपको Stradbroke Island ढूंढना है पहले, तो कहाँ है? तो उसके पास आंसर मिलेगा. यहाँ से है. Second paragraph. Island is separated from the mainland by the broad water, a stretch of sea 3 kilometer wide. More than a century ago, there was only one Stradbroke Island. तो हमारा क्वेश्चन है कि वो 2 में कैसे बना? तो 1 century पहले सिर्फ एक था, and there were at least 4 aboriginal tribes living and hunting on the island. Regrettably, most of the original island dwellers were eventually killed by diseases such as tuberculosis, smallpox, and influenza. And by the end of 19th century, the second ship wrecked on the island in 1894, and the subsequent destruction of the ship, the Cambus Vallis, because it contained dynamite, caused a large crater in the sandhills on Stradbroke Island. Eventually, the ocean broke through the weakened land form, and Stradbroke became 2 islands. तो ये 2 island कैसे बना? सबसे पहले तो डायनामाइट फटा, उससे एक क्रेटर बन गया जो बहुत बड़ा होल होता है. क्रेटर बन गया मतलब होल नहीं, खड्डा. एंड देन उसके बाद ओशन ने उसको तोड़ दिया आइलैंड को, तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया. तो फिर कौन सा ऑप्शन आपको देखो, लुक एट द ऑप्शंस अगेन. बी इज करेक्ट आंसर. वेरी गुड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई आर लॉन्ड्री एक्टिविटीज फॉर द रिजॉर्ट कैरिड आउट ऑन द मेनलैंड? अब जो लॉन्ड्री एक्टिविटीज, लॉन्ड्री पता है क्या होता है? Yes, ma'am. कपड़े वगैरह धोना, इसको लॉन्ड्री कहते हैं. आयरनिंग, वॉशिंग एंड आयरनिंग, लॉन्ड्री. ओके. व्हाई आर लॉन्ड्री एक्टिविटीज फॉर द रिजॉर्ट कैरिड आउट ऑन द मेनलैंड? लॉन्ड्री जो है मेनलैंड पे क्यों लेके जाई जाती है रिजॉर्ट की, रिजॉर्ट पे क्यों नहीं करी जाती? A, to obtain its water supply via a bore system, क्योंकि उनको water supply bore system से लानी है. Secondly, to preserve the water and anti-pollution, पानी को preserve करने के लिए और pollution को कम करने के लिए. To save the cost of installing onerous washing machines install करने की cost बचाने के लिए, and to reduce the level of phosphates in water around, और phosphates का level reduce करने के लिए. अब आपको ये देखना है कि laundry activity कहाँ पे है और ये मेनलैंड पे क्यों किया जाता है, उसका रीजन ढूंढना है. सो लेट्स सी वेयर इज द लॉन्ड्री वर्ड गिवन. लॉन्ड्री यहाँ पे है, ये लॉन्ड्री एक्टिविटीज. ऑल लॉन्ड्री एक्टिविटीज आर कैरिड आउट ऑन द मेनलैंड. सारी लॉन्ड्री एक्टिविटीज कहाँ की जाती है? मेनलैंड. अब ये क्यों की जाती है, आगे आंसर आएगा. ओके. ऊपर भी हो सकता है इसके आंसर.
So we'll read around here. Curran Cove Island Resort obtains its fresh water supply by tapping into this aquifer and extracting it via a bore system. Some of the problems which have threatened the island's fresh water supply include pollution, contamination, and overconsumption. In order to minimize some of these problems, all laundry activities are carried out on the mainland. तो पहले दिए reasons और फिर बताया कि वो mainland में की जाती है ये कम करने के लिए, pollution, contamination, overconsumption. अब कौन सा ऑप्शन देखो आपको जच रहा है यहाँ से? मैम बी is the answer. Okay? क्योंकि सिर्फ सिंपल बता दिया उन्होंने, pollution बचाना, contamination, तो ये सारा उसी का है, प्रिजर्व करना वाटर एंड एंटी पोल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट इज द मेजर वाटर सप्लायर इन साउथ स्टैडब्रोक आइलैंड इज बाय. तो सबसे जो मेजर पानी आता है ना इस आइलैंड पे वो कहाँ से है? डीसैलिनिंग द सी वाटर. डीसैलिनेटिंग होता है वर्ड, डीसैलिनेटिंग द सी वाटर. ये रेड लाइन क्यों नहीं जा रही? Desalinating the seawater, collecting the rainfall. तो desalinating का मतलब कर लो, because this is very important word. ये और भी जगह आया हुआ है, academic वाले बच्चे है ना, उनके ग्राफ में भी ये वर्ड है, तो और किसी एस्से में भी है. Desalination का क्या मतलब है? मैम नमक को अलग करना पानी से. देखो जो ओशंस का पानी होता है ना उसमें सॉल्ट्स होते हैं, वो पीने लायक नहीं होता. अगर उसमें से सॉल्ट्स निकाल दे तो पीने लायक हो जाता है. अब सबसे पहला रीजन ये कह रहे हैं कि पानी कहाँ से लेता है ये आइलैंड, की वो जो सी वाटर है उसको डिसैलिनेट कर देता है. दूसरा है रेनफॉल कलेक्ट करता है. तीसरा है ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम द मेनलैंड, एंड मेनलैंड से ट्रांसपोर्ट करता है पानी. और चौथा है बोरिंग ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर को बोर से निकालते हैं. ठीक है. अब मेजर वाटर सप्लायर देखो कहाँ पे है. वाटर की बात कहा, ये वाटर मैनेजमेंट इसी में होगा पैरा. यस मैम स्टार्टिंग में. Okay. South Stadbroke Island has groundwater at the center of the island, which has a maximum height of 3 meters above sea level. The water supply is recharged by rainfall and is commonly known as the unconfined freshwater aquifer. Curran Cove Island Resort obtains its water कैसे? By tapping into this aquifer and extracting it via a bore system. अब आंसर देखो कौन सा आएगा. Tell me. डी. देखो रेनफॉल कलेक्ट करते हैं, पर पानी कहाँ से लेते हैं? बोर करते हैं ग्राउंड वाटर को. रेनफॉल तो उनका सोर्स है पानी का, रेनफॉल वाला पानी वहां इकट्ठा हो जाता है, पर लेते कैसे हैं? ग्राउंड वाटर को बोर से निकालते हैं. समझ गए? लिखा हुआ है बड़ा क्लियर. ये देखो. Obtains its water supply by tapping into this aquifer and extracting it via bore system. ठीक है. वाटर सप्लाई जो है वो रिचार्ज होती है बाय रेनफॉल, रेनफॉल से रिचार्ज हो जाती है, पर लेते कहां से है? एक्सट्रैक्टेड बाय बोर सिस्टम. तो डी इज द आंसर. ये समझ आ गया? यस मैम. It was a bit confusing. Okay, but then if you read it correctly, फिर आपको समझ आ जाएगा कि बोरिंग क्यों है, ये वाला बी आंसर क्यों नहीं है और ये क्यों है. ठीक है. What is applied for heating water on Curran Cove Island Resort? तो वाटर हीट करने के लिए किस चीज की जरूरत की जाती है? वाटर हीट करना यहीं पे होना चाहिए. लास्ट में है मैम इसी के. हाँ बोलो. हॉट वाटर इन द इको कैबिन्स. हाँ, कहाँ से क्या यूज करते हैं? सी, हॉट वाटर इन द इको कैबिन्स and for some of the resorts vehicles are solar powered. तो कहाँ से लिया जाता है हॉट वाटर? कहाँ से किया जाता है? पानी को गर्म कहाँ से किया जाता है? सोलर पावर. पढ़ो. डी आंसर है, पता चल गया? यस मैम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो. What does, as the managers of resorts believe, the prospective future relies on? अब फ्यूचर की बात हुई है, कल के पैसेज में भी फ्यूचर की बात हुई थी. मैंने फ्यूचर का आपको बताया था, अगर फ्यूचर का क्वेश्चन आए 90% ऑफ द टाइम्स आपको ना लास्ट पैराग्राफ या उससे ऊपर वाले पैराग्राफ में मिलेगा. ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर किस पे रिलाई करता है? सबसे पहला
मोर अवार्ड्स फॉर रिजॉर्ट्स अकोमोडेशन, रिजॉर्ट की जो अकोमोडेशन है उसको ज्यादा अवार्ड दो, इस पे डिपेंड करता है। यहाँ सस्टेनेबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट इन द लॉन्ग रन, या लॉन्ग रन में सस्टेनेबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट करो, ठीक है। और या फिर इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स फॉर द टूरिज्म एंटरप्राइज। तो चौथा है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिजॉर्ट डेवलपमेंट स्पेक्ट्रम। ओके, अब आप पैसेज पढ़ो लास्ट वाला एंड यू शुड गेट द आंसर। इसी में है आंसर, देखो। Eventually, future में कहाँ be constrained by the quality control should be incorporated, यहाँ पे भी आना चाहिए, should be incorporated in the management strategy of the resort। तो क्वालिटी कंट्रोल करनी चाहिए मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ द रिजॉर्ट। तो बताओ कौन सा आंसर हो सकता है यहाँ पे? बी, बी इज द आंसर। मैम ऊपर भी मेंशन है उसके जी। स्टार्टिंग पैराग्राफ के। अच्छा, यहाँ पे we examined a case study of good management practice and yes you can get it from here also। देखो MCQs में मैंने अभी आपको कराते कराते ये बात पहली बार ज्यादा मैंने नोट करी है कि when one answer is there ना, उसके कई बार आपको 2-3 जगह से उसका आपको पता चल जाएगा कि ये यही आंसर है। ओके, कहीं से भी आपको मिलेगा आंसर वही बनेगा और कोई आंसर बनेगा नहीं, इट विल नॉट बी दैट कंफ्यूजिंग, ठीक है। Now we go over to the next question. Next set of questions is the summary completion. Okay, being located away, अच्छा पहले ये देखना है कितने words कर सकते हो, no more than 2 words। Okay, being located away from the mainland, tourists can attain the resort only by dash in a regular service। तो टूरिस्ट कहाँ कैसे पहुंच सकते हैं रिजॉर्ट में? थर्ड पैराग्राफ में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वाले में यहाँ पे। हाँ, being ma'am. located on an offshore island, the resort is only accessible by means of water transport। The resort provides hourly ferry service from the marina on the mainland to and from the island। तो कैसे पहुंच सकते हैं, किस में पहुंच सकते हैं? फेरी सर्विस। फेरी इज द आंसर, ठीक है। मैंने वाटर ट्रांसपोर्ट पहले लिखा और बट दैट वाज रॉन्ग, सो एक्चुअली इट इज आस्किंग फॉर किस के जरिए पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो फेरी इज द पिन पॉइंटेड vehicle given in the passage, so that will be the answer। Okay, next पढ़ो। Within the resort, transports include trails for walking or tracks for both dash and beach trains। वॉकिंग के लिए ट्रेल्स हैं या ट्रैक्स है, बीच ट्रेन्स के लिए और एक और चीज के लिए। अब देखो आपको ये सारा मिल जाएगा, वॉकिंग, बीच ट्रेन, सारा कुछ मिलेगा। बाईसाइकिल मिल गया। नेक्स्ट वन, हाँ देखो ट्रेल्स आ गया, ठीक है, बीच ट्रेन आ गया, और तीसरी चीज क्या है? ट्रैक्स है। तो किस चीज के लिए ट्रैक्स है? बाइसाइकिल। हाँ, अच्छा मैंने ये नोट करा है आंसर में ना बाइसिकल है, वो आंसर गलत है। इट शुड बी अ प्लूरल, बिकॉज सारा प्लूरल चल रहा है। देखो, इंक्लूडिंग ट्रेल्स प्लूरल फॉर वॉकिंग और ट्रैक्स प्लूरल फॉर बोथ डैश एंड बीच ट्रेन। सर बाइसिकल्स आना है, ठीक है। बाइसिकल वुड बी रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर इज टेलीविजन, रेडियो, एन ओल्ड डैश एंड ए स्मॉल फ्रिज। बहुत इजी था, ये लिस्टिंग की हुई है, बाकी चीजें आपको मिलेंगी। एक चीज वहां की यहाँ पे फिल करनी है जो वहां पे है, यहाँ पे नहीं है। टीवी, रेडियो, स्मॉल फ्रिज, देखो कहाँ पे है टीवी, रेडियो, स्मॉल फ्रिज? मैम एयर कंडीशनर। हाँ एयर कंडीशनर। और आप ओल्ड एयर कंडीशनर नहीं लिख सकते क्योंकि फिर 3 वर्ड्स हो जाएंगे, ओनली एयर कंडीशनर आएगा, ठीक है। ओल्ड लिखा ही हुआ है। हाँ जी, ओल्ड लिखा ही हुआ है वहाँ पे, एन ओल्ड एयर कंडीशन, ठीक है। एंड यू कैन बाय द रिपेलेंट फॉर डैश इफ यू फॉरगेट टू ब्रिंग सम। और आप रिपेलेंट किसको रिपेल करना है आपने, अगर आप भूल जाओ तो वहां से बाय कर सकते हो। मॉस्किटोज। यस, मॉस्किटोज इन द प्लूरल, ठीक है। यहाँ रिपेलेंट वर्ड है, मॉस्किटो रिपेलेंट, तो किसके लिए? मॉस्किटोज के लिए, ठीक है।
ओके ये आपका हो गया। अब ये जो ये है ग्लोबल चॉइस। अब ग्लोबल चॉइस में ना बड़ा इजी था, 5 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, मेरे को जो मैंने आज अप्लाई करा, मेरे माइंड में चल रहा था कि मुझे सही ऑप्शन मिल गई तो मैं सही को टिक कर दूंगी, और मुझे अगर ऐसी ऑप्शन मिल गई जिसको मैं इनमें से किसी को एक्सक्लूड करूंगी तो मैं एक्सक्लूड करूंगी। तो मेरा ना एक्सक्लूजन वाला मेथड ज्यादा अच्छा वर्क करा, और बाकी 3 आंसर्स थे and that they were all correct. Okay, so I'll tell you how I did it. I went about it and did it. Okay, question hai ki which 3 are true as to the contemporary situation of Korean Cove Island. तो आज की जो situation है, last पैरे में से आंसर मिलने हैं। In the last paragraph लिखा भी हुआ है, last paragraph. Korean Cove Island Resorts goes for more eco-friendly practices. ये ज्यादा eco-friendly practices करता है Korean Cove Resort. And second is the accommodation standard only conforms to the resort development spectrum of phase 3. Korean Cove Island Resort should raise the accommodation standard and build more facilities. इसको raise करनी चाहिए. Sorry. The principal group visiting the resort is international tourists, and its carrying capacity will restrict the future business expansion. ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है Korean Cove Island Resort does not conform to the characteristics of the resort development spectrum as proposed by Prudhoe phase 3 मॉडल का। अब उसके साथ ये नहीं कंफॉर्म करता, तो आप नहीं कंफॉर्म करता है और ये कह रहे हैं कंफॉर्म करता है, तो ये बी मैंने आउट कर दिया, बी को क्रॉस आउट कर दिया। ये समझ आया आपको कैसे क्रॉस आउट हुआ? बिल्कुल ऑपोजिट लिखा हुआ है अंदर। ठीक है, दूसरी चीज जो मैंने क्रॉस आउट करी थी वो थी द प्राइमरी टूरिस्ट मार्केट इन फेज 3 ऑफ द मॉडल कंसिस्ट मेनली ऑफ इंटरस्टेट विजिटर्स, और क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंटरनेशनल है, यहाँ पे है। ठीक है, द प्रिंसिपल ग्रुप विजिटिंग द रिजॉर्ट इज इंटरनेशनल, और वो कह रहे हैं इंटरस्टेट है, तो मैंने इसको आउट कर दिया और बाकी तीनों आंसर्स थे। Was this method easy? कभी अप्लाई करने को अगर दिमाग में होगा तो कभी अप्लाई हो सकता है। देखो 5 ऑप्शंस दिए हैं, 3 करेक्ट हैं, 2 रॉन्ग है। मुझे रॉन्ग ज्यादा इजीली मिल गई इसमें आफ्टर आई रेड ऑल। ठीक है, और फिर मैंने बिल्कुल टाइम नहीं खराब करा, मैंने बाकी 3 मार्क करी फटाफट। आई कुड गो इनटू, दे वर ऑल करेक्ट। ठीक है, सो इसके आंसर्स मैं सारे एक बार बोल रही हूँ। 14 क्वेश्चन का आंसर बी है, सारे नोट कर लो। 15th का बी है, 16th का डी, 17th का डी, 18th का बी। ठीक है, देन द ब्लैंक्स, पहला ब्लैंक है फेरी, फेरी, then it is bicycles, then it is ceiling fan, then air conditioner। अच्छा, ceiling fan वाला हमने मिस करा है, barely working, such as the dash overhead ceiling fan था, Yes, ma'am. and mosquitoes। ठीक है, and the last answer is A, C and F। ये 3 है, ये किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, you can write them in any order। okay, मैम बाइसाइकिल प्लूरल में लिखेगा ना, पीछे एस लगानी है। ferries, ferries, bicycles, yes। ठीक है, ओके। सो ये कैसा लगा आपको पैसेज? जब आपने कल करा अपने घर बैठ के, आपको इजी लगा कि डिफिकल्ट लगा? It was interesting. इंटरेस्टिंग सारी रीडिंग्स, आई टेल यू ऑल द रीडिंग्स, आप इनको इंटरेस्ट से करो, दे बिल्ड योर जनरल नॉलेज। आप उस वे में करो कि आपके जनरल नॉलेज बिल्ड हो रही है। ओके, सो वी विल गेट बैक इन 10 minutes for the essays, technology essays today। okay, chalo, okay, bye। with the same link for the new students, the link will be the same। I am ending the meeting for everybody and I'll re-log in after 10 minutes। okay,